post-lunch session. Now, in this session, we have Dr. Anjali Nigam, ma'am from Indore. Ma'am is a professor and HOD Department of Repertory, SKRP, Gujarati Homeopathic Medical College, Indore. Ma'am is an MD Homeopathy in Pediatrics. She has done his MD from Bihar University. She has 19 years of teaching experience in repertory subjects especially. She has attended many ROTPs in repertory. Madam having a homeopathic clinic. He is having practiced since 15 years in Indore. She has published many articles in the college journal. So I welcome you, ma'am. And now I request Vishal sir to welcome ma'am with a token of love. So let's start our session. Welcome ma'am. Thank you all of you. Is it a relatable post? Or this is a relatable post? Both are relatable? Okay. But there is always a hope after lunch. Okay. Can you tell me what is the hope? What is hope after lunch? Anybody? We are more energetic. Okay. Anyone? We are feeling sleepy somehow. No, I'm asking about what is a hope after a lunch. There is always there is always a hope of getting dessert or a sweet after lunch, isn't it? बिना स्वीट एंड डेजर्ट के हमारा लंच कभी भी कंप्लीट नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज अ होप आफ्टर अ लंच एंड आई होप दिस 3 hours will be a dessert for you. It is my hope. It will be a dessert for you. Okay, now there are few questions which you need to answer. I think it should be an interactive section. No? It should not be a lecture. It should be a dialogue. Who is your favorite teacher and why? Anyone want to answer this question? My favorite teacher was one of the faculty who have really taught us what is real homeopathy. And he was belongs to organon department, though I was concerned with the repertory. But the way he have taught us, that impression is still in my mind. So he is my role model. And today also, if I am having any difficulty, I am blindly calling him and having the advice. Thank you, sir. A teacher, Ma'am. it is not the subject which is interesting, it is the teacher who makes the subject interesting. Very well said, ma'am. Anyone?
very nice question. So, looking like from the period we are grown up and today we are in the adult stage. The A period was always my favorite teacher is my mother, who has taught me every moral lessons and everything. Today, whatever position I am there is because of my mother. And different aspect, right in the school, our favorite teachers are there, college life also. So teacher is the one who teaches us that how you will cope up with all the struggles of the life. And True. My favorite teacher is my sister. She has always taught me to let go things, to become flexible in your life. Because if you become, if you have your ego, what will happen? You will not be able to succeed in your life. So she's always told me that become so much flexible that in every situation you are able to cross that. And people will always praise you for this. So this is what Excellent. I learned. Excellent. Thank you. Anyone else? Do you want to say something? Who is your favorite teacher and why? My favorite teacher is my 7th standard class teacher because she is personally believe in me and she awakened me by taught me some habits which is till now I am following that, and she is continually updated about my life, and she is still in contact with me, so she is my favorite teacher. Anyone, you want to say something, sir? My favorite teacher was my guru, from whom I have learned homeopathy, being flexible in the cases, and he taught me many things. Not only homeopathy, he taught me the life lessons also, many things in my life. So what I can say that whatever I am today, only due to his teachings. So mother and father are always, no one can take their places, but always we have another person apart from our mother and father or parents, whom we can make our guru. So he was my guru, Dr. M.C. Jha. He was my teacher. Thank you all of you. So, by this time, we can understand what is the role of teacher in our life. Teacher is a person, but is hero for our students. Okay? Teacher inspire. We don't know how many people we inspire in our life, but we are an inspirator. Okay? One more. Which method do you adopt for teaching? Which method? जब हम बच्चे थे तो ब्लैक बोर्ड ही एक मेथड होता था पढ़ने का, पढ़ाने का। आप लोगों ने बहुत सारे मेथड्स अभी डिस्क्राइब किए कि मदर ने आपको कैसे इंस्पायर किया, सिस्टर ने आपको कैसे इंस्पायर किया। सबका अपना एक तरीका होता है कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाते हैं। तो you all are a teacher, and what method do you adapt to teach a student? It's like repertory. There are different methods of repetition as per the case. So as per the need of the child to whom we are going to teach, accordingly we can adapt a particular method. It is very relevant answer, ma'am, for today's session. It is very relevant. If you want any information, where you search for? Related books, Source book. source books, Google. teachers or the seniors who we read, Okay, seniors. or the notes. Okay. Books. Browse on YouTube. Yes. Nowadays, we browse everything on YouTube. Or search on internet. What if you lost internet connection in your phone? क्या होगा अगर आपके फोन का इंटरनेट कनेक्शन बंद है, आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, आपका फेसबुक नहीं चल रहा है, आपका इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे? या
आपका रिएक्शन क्या होता है? ये क्या हो गया? हैंडीकैप। बेचैन हो जाते हैं, वी गेट रेस्टलेस। हम लोग फोन को रिस्टार्ट करके देखते हैं क्या हो गया। हम लोग कॉल सेंटर फोन करते हैं, अरे मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई। या हम लोग सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर देते हैं, अरे ये आइडिया बहुत बेकार है, इसका इंटरनेट नहीं चलता है, तो शिफ्ट टू जियो। अरे जियो बहुत खराब है, चलो इसको शिफ्ट करके हम वोडाफोन पे आ जाते हैं, है ना। तो जो इंटरनेट है वो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। इसके बिना हम लोग जस्ट हैंडीकैप फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। हाउ यू लर्न न्यू थिंग, कुछ भी नई चीज सीखने के लिए आप क्या करते हो? सोना किसी को नहीं है, पोस्ट लर्न Exploration. Put effort. It depends on Put effort. We want to learn new things, so we have to put effort on that. ओके। और Searching for the opportunities. मीनिंग क्या है वो सर्च करते हैं हम, इंफॉर्मेशन लेते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। किसी से डिस्कस करते हैं, वेरी नाइस। और Find someone who is मोर इंटेलिजेंट देन अस। no. He is more सॉरी into मैडम, activity. बट इस हॉल में जितने लोग हैं इससे ज्यादा इंटेलिजेंट सोसाइटी में कोई नहीं है। टीचर्स से इंटेलिजेंट कोई नहीं होता है सोसाइटी में, तो हम हमारे से इंटेलिजेंट पर्सन नहीं ढूंढ सकते हैं, हम इंटेलिजेंट लोगों को बनाते हैं। एक कहावत है कि टीचिंग इज अ मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस, मदर ऑफ ऑल जॉब्स, है ना। मदर है तो हमसे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। भले ही हम लोग उतना पे नहीं मिलता है हमको, बट स्टिल जो सेटिस्फैक्शन है वो हम किसी मॉनिटरी उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। जब आप कहीं जाते हैं, आप लोग बहुत सारे सालों से पढ़ा रहे हो और आप लोग कहीं जाते हैं और आपको आपका स्टूडेंट मिल जाता है जो बहुत अच्छा कर रहा होता है और वो आपको आके बोलता है कि सर मैम आपने हमको पढ़ाया था और आपकी वजह से हम यहाँ हैं, तो उस सेटिस्फैक्शन को, उस हैप्पीनेस को हम किसी पैसे से तोल नहीं सकते हैं। सुंदर पिचाई हो या स्टीव जॉब्स हो, जो बहुत हाई अर्निंग पीपल्स हैं, स्टिल उनके भी टीचर होते हैं, उनके भी रोल मॉडल होते हैं। सो हमसे अच्छा, हमसे इंटेलिजेंट, हमसे क्रिएटिव और कोई भी नहीं है सोसाइटी में। वी आर अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी, वी आर अ बिल्डर्स ऑफ सोसाइटी। सो हाँ, हम इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, हम बुक से सर्च कर सकते हैं, हम कोई ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। हाउ ऑफन यू यूज गूगल? वेरी ऑफन, फ्रीक्वेंटली, डेली, ऑलमोस्ट, हर 10 मिनट में। As per the demand. SOS, as per the need. SOS। हमारे कंपेयर में फ्रीक्वेंटली ये यूज करते हैं, इनके कंपेयर में इनसे भी छोटे बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। तो ये सब क्वेश्चंस क्यों थे? क्योंकि हमारा टॉपिक ये है। सो वेलकम, हेलो, मैं डॉक्टर अंजलि निगम and I am very happy to be with a group of intellectual persons and I am very happy to share my experience with all of you. Albert Einstein ने कहा था, creativity is the intelligence for fun, intelligence of fun. Creative peoples वो होते हैं जो अपनी इंटेलिजेंस को फन वे में एक्सप्रेस करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है, जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती है, उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स विल सीक ऑल द जॉब्स, all the dull, dirty and dangerous jobs, and it will remain a creative job, a job having empathy. So teaching से ज़्यादा, टीचर से ज़्यादा क्रिएटिव कुछ हो नहीं सकता है। टीचिंग से ज़्यादा एम्पैथेटिक वे, एम्पैथेटिक जॉब कोई नहीं हो सकता है। राइट? सही है ना? सो
अब हम आते हैं हमारे जो टॉपिक है, टॉपिक आप लोगों को सबको पता है। मैं एक्चुअली यहाँ पे कुछ सिखाने या कुछ बताने नहीं आई हूँ। जैसे मैंने बोला कि इतने इंटेलिजेंस लोगों को अगर कुछ सिखाना हो तो इट इज़ लाइक शोइंग कैंडल टू अ सन। आप लोग अपने अपने एरिया में, अपने अपने शहर में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो मैं यहाँ आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, जस्ट आई एम came here to share my experiences with you or a new thing with you, है ना। हम लोगों को सबको we should be a good learner। अगर हम अच्छा सीखते हैं तो ही हम सिखा भी सकते हैं। Effective teachers are constantly learning, and I am still learning. Thank you. इतना था? नहीं, खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। बट ये मुझे कोट बहुत अच्छा लगा, आई एम स्टिल लर्निंग। और क्या पता मैं आज शाम में 5 बजे तक पता नहीं और कितना सीख के जाऊंगी आप लोगों से। So my topic is teaching aids, media and computer assisted learning. Please अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप माफ कर देना, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। I am not a BA teacher, I am not a trainer। मैं रिपर्टरी पढ़ाती हूँ, बट ये टॉपिक बहुत अच्छा है। जब मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए कहा गया तो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस टॉपिक। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो बेयर विद मी। If a child can learn the way we teach, which will teach the way they learn। कहा जाता है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, आपको उसके लेवल तक जाना है, उसके मेंटल लेवल तक जाना है। हम जब बच्चे से बात करते हैं, छोटे से बच्चे से जब हम बात करते हैं तो बात करने के लिए हम ऊपर हैं और वो बच्चा नीचे है, तो हमें उसके लेवल पे बैठ के बात करते हैं, है ना, क्योंकि हमारी बात वो समझ सके। तो कहा जाता है if a child can learn the way we teach, we should teach the way they learn। हमको उनके तरीके को अडैप्ट कर लेना चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। एक फिजिसिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट हुए थे, जोसेफ वेबर। उन्होंने कहा था वी लर्न 1% थ्रू टेस्ट, 1.5% थ्रू टच, 3.5% थ्रू स्मेल, 11% थ्रू हियरिंग एंड 83% थ्रू साइट। मतलब 5 सेंसेस के साथ। हम होम्योपैथी में पढ़ते हैं वी हैव टू परसीव अ पेशेंट, है ना। परसेप्शन कहाँ से बनता है? परसेप्शन बनता है पूरे 5 सेंसेस से। आप लोगों ने शायद सबने दृश्यम मूवी देखी होगी। आई एम अ वेरी बिग बॉलीवुड फैन, मुझे बहुत पसंद है बॉलीवुड मूवीज। तो दृश्यम मूवी आप लोगों ने देखी? 2 अक्टूबर दृश्यम, अजय देवगन की दृश्यम 2 अक्टूबर। तो वो बार बार 2 अक्टूबर बोल रहा था। कहा जाता है कि आपका विजुअल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ऑडिटरी इम्पैक्ट, है ना। विजुअली अगर आप कोई चीज देखते हो तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से रिमेम्बर कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो एज कंपेयर टू हियरिंग। तो यहीं पे हम देख रहे हैं 83% अगर हम कुछ लर्न करते हैं वो करते हैं थ्रू साइट, थ्रू विजन। We remember 20% of what we hear, we remember 30% of what we see, we remember
remember 50% of what we hear and we remember 90% of what we say and do. है ना? हम सबसे ज्यादा कुछ चीज बोलते हैं और कुछ चीज करते हैं तो हमको वो चीज याद रहती है. आई हियर एक ये चाइनीज प्रॉवर्ब है, आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेम्बर, आई डू, आई अंडरस्टैंड. अगर हम कोई चीज करते हैं तो हम उस चीज को याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं. मैं अपनी क्लास में हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलती हूँ. व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अंडरस्टैंडिंग एंड व्हेन देयर इज अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ मेमोरी. अगर बच्चा आपका क्लास में आना ही नहीं चाहता है, उसको उसका फ्रेंड खींच के लेके आता है, अरे नहीं नहीं चल चल लेक्चर कर लेते हैं, तो उसका ध्यान वहाँ आपके लेक्चर में होता नहीं है. वो सोचता है अरे 11 बजे का शो है, मुझे तो टिकट भी लेना है और मैं वहाँ पे पता नहीं कितना फन करूँगा, मैं यहाँ के बैठ गया हूँ. वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, और वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है तो वो कुछ याद भी नहीं कर पाएगा. इसीलिए when there is a will there is understanding, and when there is understanding definitely there is a memory. वो याद कर सकता है. So before discussing about teaching aid, know about learner. है ना? हम जिसको हमारी बात बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो एक आप बात बताइए, व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या होता है सिंपल वर्ड्स में? टू एक्सचेंज, बुक्स होती है, हर कोई बुक्स से पढ़ता है, हमारे पास भी बुक्स है, हम भी वही बुक्स पढ़ते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स वो बुक्स रेफर करते हैं. तो फिर टीचर्स की जरूरत क्या है? एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेनेशन, चीज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग मीन्स मेकिंग थिंग्स सिंपल. जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, उसको सिंपल करके बताना, वही टीचिंग है. क्योंकि बुक्स में तो सब है, हम भी वही बुक्स पढ़ रहे हैं, हम भी आर.पी. पटेल की बुक्स पढ़ते हैं, हम भी शशिकांत तिवारी की बुक को रेफर करते हैं, हम भी कैस्ट्रो की बुक को रेफर करते हैं, हम भी केंट की रिपोर्टरी पढ़ते हैं, बच्चे भी वही पढ़ते हैं. तो अगर दोनों एक ही चीज पढ़ रहे हैं तो हमारी जरूरत क्या है? हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम चीजों को उनकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक पहुंचाकर उनको बता सकते हैं. सो लर्नर कैसे होते हैं? फर्स्ट टाइप है विजुअल लर्नर, जो देख के सीखते हैं, है ना? दैट इज कॉल्ड विजुअल लर्नर. काइनेस्थेटिक लर्न व्हाट दे डू. स्कूल में नर्सरी में बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो कभी भी वो बच्चों को आप ट्विंकल ट्विंकल बोलने बोलो, वो बच्चे शुरू हो जाएंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. क्योंकि they are kinesthetic learner, they learn what they do. Next, auditory learner, they learn what they hear. जो सुनाई देता है, जो सुनते हैं, उसको वो लर्न करते हैं. कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि तुम ये लेसन पढ़ो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब उसको रीड करके सुनाओ और उसको वो याद हो जाता है ना? दैट इज द ऑडिटरी लर्नर. स्ट्रेस लर्नर, लर्नर्स बहुत स्ट्रेस्ड है. जब है ना बहुत प्रेशर होता है, एग्जाम आता है कि अब तो करना है, डू और डाई सिचुएशन है, उस समय जो बच्चे सीख जाते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रेस लर्नर. फिर ईज लर्नर, जब उनको रिलैक्स करके कुछ मतलब मूवीज के बारे में बता के, या मतलब मैं तो ऐसे ही बताती हूँ बच्चों को कि एग्जाम्पल्स देती हूँ. जैसे मैंने पहले बताया, मैं बॉलीवुड फैन, तो बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं ना, मुझे कुछ कुछ क्लिक होते हैं कि अच्छा ये एग्जाम्पल अच्छा है बच्चों को बताने के लिए. तो ईज लर्नर, उसको बोलते हैं ईज लर्निंग. स्क्रिबल, जो लिख लिख के पहले होता था, जो मिशनरी स्कूल्स के स्टूडेंट है, कॉन्वेंट में जो पढ़ते थे, तो टीचर होमवर्क देती थी, एक लाइन को 10 टाइम्स लिख के आओ. स्क्रिबल. ट्रस्ट, लर्न विद ऑथोरिटी. ये पढ़ के नहीं आओगे तो फेल कर दूंगा, आज ही पढ़ना ही है तुमको, तो वो पढ़ते हैं. टीच, फ्रॉम टीचिंग. सबसे अच्छा मेथड है टीचिंग. हमने देखा था ना कि हम 90%
वी लर्न बाय डूइंग थिंग्स, है ना. एंड लास्ट इज अ कॉपी. कॉपी कर करके लर्न कर लेते हैं. इसकी कॉपी से उसकी कॉपी, उसकी कॉपी से उसकी कॉपी करके हम लर्न कर लेते हैं. अब रिटेंशन रेट मतलब किसी चीज को आपके पास याद रखने के लिए या उस चीज को क्या बोलते हैं, उसको होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी होती है, उसके बारे में बोला है. एक दो मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, एक पैसिव टीचिंग एंड पार्टिसिपेटरी मेथड, है ना. पैसिव टीचिंग जो हम लोगों ने देखी थी कि चॉक एंड बोर्ड से लेके टीचर आता है, एक लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं. अभी भी हम क्लास में जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ परसेंट ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बैठ के सीरियसली सुनते हैं. कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा टाइम सुनते हैं और बाकी टाइम एब्सेंट होते हैं. एंड कुछ बच्चे होते हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, है ना. तो लेक्चर जो होता है 5% वो याद रहता है लोगों को. सिर्फ लेक्चर अगर हो तो 5% याद रहता है. 10% रीडिंग के थ्रू आप एक चीज को पढ़ रहे हो, याद बार बार रीड कर रहे हो, तो भी आप 10% ही उसको रिकॉल कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो. 20% ऑडियो विजुअल. ऑडियो विजुअल. 30% इज अ डेमोन्स्ट्रेशन. हमारे यहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें हम बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है. तो बच्चों को जनरली ना, बच्चों को जो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी एंड फार्मेसी के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो अच्छे से याद रहते हैं. वो टॉपिक उनको अच्छे से याद रहते हैं बिकॉज वो उन्होंने देखा होता है, वो उन्होंने किया हुआ होता है. ट्राइचुरेशन उनको अभी भी याद है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था. उसके बाद हमने कभी ट्राइचुरेशन, अनलेस हम फार्मेसी टीचर नहीं है तो, है ना, तो हमको अभी भी याद रहता है बिकॉज वो हमने किया था, उसका हमको डेमोन्स्ट्रेशन मिला था. फिर आता है पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स, ग्रुप डिस्कशंस, by practice and 90% by teaching to others. ठीक है. अगर आपको कुछ क्वेरीज हो किसी को तो यू आर फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. मुझे अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं कोई तो होगा जो मुझे भी सिखा देगा. ट्रस्ट मैडम, जो कोई आप किसी पे विश्वास करते हो, वो जो आपको पढ़ाता है विश्वास करके, है ना, वो ट्रस्ट, वो लर्नर्स होते हैं जो कि किसी के क्या बोलेंगे उसको, संरक्षण में जो पढ़ते हैं. गुरु शिष्य परंपरा एक्चुअली वही सबसे अच्छा टीचिंग मेथड था. गुरु, टीचर, शिक्षक और गुरु, है ना, दो बहुत अलग अलग चीजें हैं. गुरु तो कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है, जैसे आप लोगों ने बोला गुरु. शिक्षक हम लोग हैं, बट शिक्षक को गुरु बनना चाहिए. अब्दुल कलाम ने बोला था कि आजकल शिक्षक बहुत हो गए हैं, गुरु कम हो गए हैं. तो हम सिर्फ उनको सिलेबस पढ़ाते हैं, टीचिंग ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ हम नहीं पढ़ा पाते हैं उनको. सो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, टीचिंग एड्स. मीनिंग ऑफ टीचिंग एड. इस टॉपिक में हमें क्या क्या देखने मिलेगा? मीनिंग ऑफ टीचिंग एड, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एड, नीड्स फॉर टीचिंग एड, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स. तो सबसे पहले टीचिंग एड क्या है? As we all know that today's age is the age of science and technology. Teaching, learning programs have also been affected by it. The process of teaching, learning depends upon different types of equipments available in classroom. आज हम बोलते हैं ना, समय की जरूरत है कि आपको अपडेट होना है, आपको अपग्रेड होना है. और मुझे लगता है शायद इसीलिए ये रिपर्टरी के CME में नॉन रिपर्टरी टॉपिक है टीचिंग एड्स, है ना, क्योंकि हमको अपग्रेड होना जरूरी है. एंड एज अ रिपोर्टरी टीचर हमारे लिए तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, हमको बच्चों को सॉफ्टवेयर बताना है, कंप्यूटर रिपोर्टरी हमको पढ़ाना है. तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. एज फार एज होम्योपैथी इज कंसर्न, रिपोर्टरी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है. आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्वेश्चन पेपर है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन होम्योपैथी.
एक क्वेश्चन आता ही आ रहा है हमेशा एग्जाम में। So, teaching aid is a tool used by teacher or a tutor to help learner to improve reading and other skills, illustrate or reinforce the skill, fact or idea, and relieve anxiety and fear. जो हमने अभी टीचिंग एड की हम बात कर रहे हैं, क्यों करना है ये टीचिंग एड की, हमको जरूरत क्या है? हम ट्रेडिशनली भी तो पढ़ा सकते हैं ना, जो ट्रेडिशनली हम पढ़ते थे चॉक एंड बोर्ड, जो हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया था, हम वैसे भी तो पढ़ सकते थे। बट हम देखते हैं इंडियन मैथोलॉजी में अगर हमने देखे आप तो कृष्ण अर्जुन को बोला जाता है सबसे अच्छे शिष्य थे वो। तो अर्जुन कोई ब्लैक बोर्ड या चॉक इनसे तो नहीं पढ़े थे ना, देयर वेर अ डिफरेंट टीचिंग एड्स, उनको पढ़ाया जाता था, अलग तरीके से पढ़ाया जाता था, लेसन्स ऑफ लाइफ उनको पढ़ाए जाते थे। तो आज पर ना अर्जुन है ना कृष्ण है। बोला जाता है कि अच्छा टीचर कौन होता है? अच्छा टीचर कब बनता है वो? जब उसका स्टूडेंट अच्छा होता है। जस्ट इमेजिन कि अगर कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि तुम ये युद्ध करो, अर्जुन बोलते जी सर मैं युद्ध कर लेता हूं, तो क्या हमको भगवत गीता मिलती? उन्होंने क्वेश्चंस किए, क्यों, धर्म क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, और कृष्ण ने उनके जवाब दिए। तो टीचर तो ऐसे ही अच्छा होता है, पर अगर स्टूडेंट अच्छा हो तो टीचर बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमने सबसे पहले ही हमने देखा था कि अगर बच्चा हमारे मेथड से नहीं सीख पा रहा है तो हमको उसके हिसाब से सिखाना होगा ना, हमको उस लेवल पे पहुंचना होगा। इसलिए ये सब टीचिंग एड्स की हमको जरूरत पड़ती है। टीचिंग एड कैन बी डिफाइंड एज अ मैनुअल और अ मैकेनिकल डिवाइस that we use for purpose of making the education better, to promote and make it effective. Need for teaching aids. Every individual has a tendency to forget. People use teaching aid to help to retain concept permanently. Students can learn better when they are motivated properly through different teaching aids. Teaching aids develop the proper image. Teaching aid create an environment of interest for the student. मतलब हम अगर बैठे हैं और 1 घंटे से एक लेक्चर सुन रहे हैं, मतलब हम भी अभी भी, और मेरे को ऐसा लगता है बच्चों से ज्यादा नींद तो हमको आती है। बच्चे पता नहीं हमको कैसे 1-1.5 घंटा झेल लेते हैं, हम तो किसी को झेल भी नहीं पाते हैं, थोड़ी देर बाद तो हम खुद ही सोने लग जाते हैं। तो ये जो टीचिंग एड्स है, ये टीचिंग एड हेल्प करते हैं एक हैप्पी एनवायरनमेंट बनाने के लिए, एक एनवायरनमेंट जो टीचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो बहुत जैसे हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कोटेशन देखा था ना कि अगर इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। तो इंटेलिजेंस को अगर आपको पॉलिश करना है तो वो फन वे में होना चाहिए। एंड बहुत अच्छी चीज है जो प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनका लर्निंग मेथड आप देखो, उनको कोई बुक नहीं होती है, उनके पास कुछ नहीं होता है, पर उनको सब कुछ पढ़ा देते हैं, कलर्स पढ़ा देते हैं, उनको शेप्स पढ़ा देते हैं, फन में पढ़ा देते हैं। तो अगर फन होगा, अगर एंजॉयमेंट होगा, तो आप बहुत से बहुत मुश्किल चीज को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। Teaching aid helps to increase the vocabulary of the student. Teaching aid helps the teachers to get something and make learning permanent. Teaching aid provide direct experience to the student. Objectives क्या है इसके? To make a teaching effective, जो हमने नीड में देखा था, ऑलमोस्ट वही उसके ऑब्जेक्टिव है। अब what are the different types of teaching aid? एक होता है विजुअल, ऑडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। विजुअल एड्स कौन से हैं? मतलब क्या होते हैं विजुअल एड्स? विच यूजेस सेंस ऑफ विजन कॉल्ड विजुअल एड्स, है ना? जो हमारे कॉलेजेस में, अभी मैं यहाँ कॉलेज में गई, यहाँ पे भी इतने मॉडल्स है, चार्ट्स है, फ्लैश चार्ट, इवन सभी कॉलेजेस में, है ना, कि पूरी वॉल भरी होती है जिसमें चार्ट्स बने, फ्लैश चार्ट्स है, मॉडल्स है, और बहुत अच्छे हर्बेरियम होते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के मॉडल्स बहुत अच्छे होते हैं, और सैनिटरी आपको वो मिलेगा, वेल मिलेगी, है ना, फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, मटीरिया मेडिका में
फार्मेसी में बहुत सारे हर्बेरियम्स होते हैं। ये सब क्या है? दे आर अ टीचिंग एड। एक मॉडल है, कुछ वर्किंग मॉडल है जिसको देख के बच्चे सीख सकते हैं। तो वो होते हैं विजुअल टीचिंग एड, जिसमें बोलते हैं जो ट्रेडिशनल हमारा चॉक बोर्ड है, ओवरहेड प्रोजेक्ट, अभी जो हम यूज कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो टीचिंग एड। ऑडियो एड, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड ग्रामोफोन्स। आप लोगों ने होम पैक सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसमें मटीरिया मेडिकल लाइट एक सीडी आती है जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड के फॉर्म में है, जहां आपको सुनने भी मिलता है और विजुअली भी उसमें कुछ कार्टून्स के थ्रू या कुछ पिक्चर्स के थ्रू किसी रेमेडी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो होते हैं ऑडियो एड। आजकल तो ये ऑडियो एड का जमाना खत्म हो गया है, विजुअल पे ज्यादा है, बट स्टिल कुछ आपको वेबसाइट्स है या कुछ बुक्स है, अमेज़न पे एक ऑडिबल नाम का एक ऐप है जिसमें आप बहुत सारे नॉवेल्स है, बुक्स है जिसको आप सुन सकते हो। आप पढ़ना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, आप उसको सुन सकते हो। तो देखो टेक्नोलॉजी कैसी हो गई कि आपको बुक भी नहीं कैरी करना है और आपको अपनी आंखें भी खराब नहीं करनी है, आपको सिर्फ सुनना है और आपको सुन के सीखना भी है। ऑडियो विजुअल टीचिंग है, टेलीविजन है, प्रोजेक्टर है, बहुत सारे अभी ये सबसे कॉमन चीजें हैं। ये कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स की है, सभी के डिपार्टमेंट में ये है, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं गूगल से लेके और यहाँ चिपकाने से अच्छा है मैं अपनी डिपार्टमेंट की आपको कुछ पूरी नहीं दे पाई। तो एग्जाम्पल्स, वही एग्जाम्पल, चॉक बोर्ड, पहले ब्लैक बोर्ड होता था, अब व्हाइट बोर्ड है और वो व्हाइट बोर्ड अब स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो गया है। फ्लिप चार्ट्स होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये कम खत्म हो गया, ट्रांसपेरेंसी अब नहीं रहा है। पहले होता था जब हम पढ़ते थे तो उस समय होता था OHP पे हम रात भर बैठ के एक ट्रांसपेरेंट शीट पे मार्कर से लिखते थे और वो दूसरे दिन उसको प्रेजेंट करते थे। अब वो इतना आउटडेटेड हो गया। टेक्नोलॉजी के साथ में यही प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। आज हम लोग सीखते हैं, मतलब है ना, हम कांस्टेंट लर्नर बन जाते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। OHP पे हमने बहुत पढ़ा है ना मैडम, तो आज तो कोई OHP यूज नहीं करता है। हमारे डिपार्टमेंट में रखी थी तो बच्चे बोलते हैं मैडम इसको कबाड़ में क्यों नहीं दे देते, उसको कोई यूज ही नहीं करता है। फ्लॉपीज होती थी पहले, अब फ्लॉपी मैंने एक संभाल के रखी थी कि मेरे बच्चे को दिखाने के लिए कि ये जब बड़ा होगा ना इसको दिखाऊंगी कि देखो एक फ्लॉपी डिस्क भी होती थी। आजकल तो आउटडेटेड, अब मिलती भी नहीं है कार्ड रिपर्टरी। फिर आता है स्मार्ट बोर्ड, जैसे मैंने बोला स्मार्ट बोर्ड एक ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब स्मार्ट बोर्ड पे आप उसको एज अ व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो, आप उसको एज अ प्रोजेक्टर यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है स्मार्ट बोर्ड। अभी ये सबसे रिसेंट टीचिंग मोड है। ऑडियो टेप्स है, वीडियो सीरीज है। अभी जस्ट मैं आपके जो प्रीवियस रिसोर्स पर्सन थी उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि आप राजन शंकरन की आपको अगर लेक्चर सुनना है तो एक वो वेबसाइट है, उस पर आप वीडियो लेक्चर सुन सकते हो। तो वो भी एक और टीचिंग एड है कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दो और बाकी लोग उसको देख के सीख सकते हैं। हम जैसे लोग सीख सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग हम कर सकते हैं। ये जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स है उसमें कैसेट्स है, रिकॉर्ड्स है, हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स, टेप रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर। जैसे मैंने बोला कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जनरली B.Ed M.Ed के लोगों को पढ़ाया जाता है और ये उनके सिलेबस का टॉपिक है। तो मतलब हम इतने इंटेलेक्चुअल लोगों को, बट स्टिल वो टीचर है और हमको अडेप्ट करना है ये सब चीजों को, हमारे लिए बहुत जरूरी। तो कुछ चीजें जो हम इसमें से 90% चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, अभी हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। फिर प्रोजेक्टेड ऑटो विजुअल जो एड्स है वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स के थ्रू हम कर सकते हैं, कंप्यूटर्स, वीडियोस, टेलीविजन, मूवीज। बॉलीवुड, आवाज नहीं आ रही।
अरे इन्होंने पिछला वाला जो स्कैन ठीक किया है। उसमें नीचे के दो क्या थे? Don't subdivision. स्पीकर ऑन कर लूं क्या मैं? हो जाएगा। मैडम क्या बोला? साथ ही हाथ बढ़ा इसके हाँ? इसके बाद जो होने वाला है उसका वही बात माहौल बनाते इसके बाद की तो बुलेट दे दी आपने पूरा माहौल बना हाँ? माहौल बना बुलेट देखो टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रॉब्लम्स है। मैडम कैन यू शो मी द प्रीवियस स्लाइड प्रीवियस में ठीक है। The sub-classification इससे पहले वाला what that liberty is going to depression. That we I need to audit for auditors. पूरी क्लास दिखा दिया अभी अंदर प्रोसेसिंग होगा बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी दो। ओके, तो वो है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी दो। B for Badri, B for H for Hari, H for that's right. Sona Chandi Tol, sign cos 10. B over B. अब इसको अपने हमने भी इसी टीचिंग एड से हमने पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमने सब्जेक्ट जब फर्स्ट ईयर में थे तो आर्सेनिकल ऐसे ही पढ़ा था। ए से बी ए आर रेस्टलेसनेस हमने ऐसे ही पढ़ा था ना। और ये बहुत इफेक्टिव टीचिंग एड है। ये मूवी चॉक एंड डस्टर्स है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप इस मूवी को जरूर देखें, बहुत अच्छी मूवी है। देखिए आप लोग भी बॉलीवुड फैन हो? हाँ सर। My question is that non-projected visual aid, हाँ। what is the meaning of this realia and Fusenier rods and board? नहीं, बस ये दोनों का मतलब है। कौन सा गाना? ये बी अच्छा ये वाले बोल रहे हैं। realia means what? सर ये एक टाइप, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूज करते हैं उसको, जो वो उनके जो वर्किंग मॉडल्स होते हैं इंजीनियरिंग में वो दिखा के करते हैं। And the what is that one after model? ये भी उसी, ये दोनों भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। वो उनकी कुछ मशीन डिजाइन या ऐसा कुछ उनका वो होता है, उसके थ्रू वो पढ़ते हैं। नहीं तो क्या है, ये हम मंगाने के लिए दे देंगे फिर। नहीं, हमारे काम का नहीं है। हमने सिखाया है, हमको ये चाहिए। हमारे काम का नहीं है। The power of algebra is none when you learn it. It's full of fun. The power of algebra is none when you learn it. It's full of fun. Once you know the values of x and y, I promise you'll score very high.
था, मतलब हम लोग सब बायो स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए डेफिनेटली मैथ बड़ा कॉम्प्लेक्स, और बच्चे कितने खुश होकर और कितने अच्छे से पढ़ रहे थे। तो दिस इज इफेक्टिव टीचिंग एड। फिर से याद कर ले कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, क्रिएटिविटी इज द इंटेलिजेंस ऑफ मैन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मीडिया। सबसे रेलेवेंट आज हर किसी के घर में ये मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आपका बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो कॉलेज में है, ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स। मैंने तो पढ़ा था कि ना लैपटॉप्स की कंपनीज जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रही है, इतनी ज्यादा डिमांड है लैपटॉप्स की। स्मार्टफोन की बिक्री कोविड में हर बिजनेस जीरो था, सिर्फ स्मार्टफोन, लैपटॉप्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये फ्लरिश कर रहे थे। तो मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, हमारी लाइफ में भी। मैम मजा आ रहा है कि नहीं? पोस्ट लंच साइड इफेक्ट तो नहीं है किसी को? सो मीडिया इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, बहुत छोटा सा है, मतलब मुझे ऐसा नहीं, बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? नहीं हो रहा है, हाँ। हो रहा होगा तो भी कुछ नहीं कर सकते। आधे घंटे में चाय कर लेंगे। तो इस मीडिया हमने अभी तक देखा था, इसको टेंशन हो रही है, मुझे 4 बजे निकलना है, मुझे 4 बजे निकलना है। क्या होता है, क्या डायरेक्ट टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है, तो उतना रहेगा। सर 5 बजे तक का सेशन है, 4 बजे कैसे निकल सकते हो आप? 5 बजे इसको फॉलो करो सर। 5:15 तक का सेशन है। Against ethics and morality. Let's go. चलो, इसमें हम देखेंगे मीडिया में इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया, टाइप्स ऑफ मीडिया, एजुकेशन, मीडिया एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन एजुकेशन, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन एजुकेशन एंड कंक्लूजन। सो मीडिया इज एवरीवेयर. It has become part of our daily life. Media play a dominant role in the learning process. Media has potential. Media has potential to shape the personalities and change the way we perceive and understand the world. अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो डिजिटल मीडिया है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे श्रीदेवी की डेथ हो, चाहे तबलीगी जमात हो, कुछ भी, कोविड हो, मीडिया ने उसको कितना हाइप किया था। मीडिया चाहे तो किसी को कल्प्रिट बना दे, मीडिया चाहे तो किसी को हीरो बना दे, और मीडिया चाहे तो किसी को जीरो बना दे। तो मीडिया का रोल ना सिर्फ टीचिंग में और एजुकेशन में, बट हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा है। Education media are integral part of learning. They form a person and transform society. The word media comes from Latin plural word medium. Media में refer to communication. Communication से एक बात बताऊंगी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो communication है 30% we communicate through verbal way and 70% we communicate through non-verbal way. And non-verbal way क्या है? Body language, gestures, expressions, है ना? तो इन सब चीजों का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम किसी को ऐसा करते हैं तो हमको बोलने की जरूरत नहीं कि इसका मतलब क्या है, ऐसा करते तो बोलने की जरूरत नहीं इसका मतलब क्या है, ऐसा करते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं क्या है। तो नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे है, एंड पर्टिकुलरली फॉर होम्योपैथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है कम्युनिकेट करने का, क्योंकि पेशेंट हमारे पास 70% टाइम नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन से आता है। वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, वो किस तरीके से बोलता है, उसका पहनावा कैसा है, ये सब चीजें हम होम्योपैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तभी हम बोल रहे हैं कि मीडिया जो है या कम्युनिकेशन जो है ये सिर्फ हमारे टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस के लिए नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ
ह्यूमैनिटी के लिए भी ज़रूरी है और इतना इम्पोर्टेंट वे है, इसको समझना उतना ज़रूरी भी है हमारे लिए। कम्युनिकेशन टूल्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन और डेटा। कौन कौन से मीडिया होते हैं? एक प्रिंट मीडिया होता है जो हम सब जानते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, अदर जर्नल्स है, पैम्पलेट्स आते हैं आपके घर पे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं कि आप फ्री होम डिलीवरी इस चीज़ की है और प्लम्बर चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करो। तो ये एक प्रिंट मीडिया के फॉर्म में आता है। तो मीडिया सिर्फ पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, एडवर्टाइजमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग उसका एक असेट है मीडिया का। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एंड सिनेमा। रेडियो तो आजकल पता नहीं कितने लोग सुनते होंगे। पहले मुझे याद है बचपन में सुबह सुबह हमारे घर में वो ये आकाशवाणी का वो आता था और वो बजता था, और शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो दूरदर्शन के एज में होंगे, वो जो दूरदर्शन सुबह सुबह बजता था, उसका म्यूजिक आता था, म्यूजिक होता था वो। सिनेमा, हाँ हम देख रहे, अभी भी हम देख रहे हैं, ये सिनेमा भी एक बहुत अच्छा मीडियम है अपनी बातों को पहुंचाने का। सिनेमा को बोला जाता है कि वो रिफ्लेक्शन है आपकी सोसाइटी का, इट इज अ मिरर ऑफ अ सोसाइटी। आपके सोसाइटी में जो होता है वो आपको दिखाया जाता है। रिसेंटली हमने एक मूवी देखी शहंशाह, जो कैप्टन विक्रम बत्रा वाली मूवी, शेरशाह, वो मूवी हमने देखी। एक बहुत अच्छी मूवी है मद्रास कैफे, जो कि वो जो राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था। एक शायद आप लोगों ने फैमिली मैन 2 मूवी सीरीज देखी होगी आपने, है ना? उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। एक सत्यमेव जयते मूवी है जिसमें आपको बताया गया कि कैसे होता है। एक उरी थी जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में थी, हमको नहीं पता था, हम नहीं जानते थे कि कैसे होती है चीजें, क्या चीजें होती है, बट इन मूवीज के थ्रू हमको समझ में आता है। हमने एक मूवी देखी थी मणिकर्णिका, जिसमें झांसी की रानी के बारे में बताया। हमने स्कूल में झांसी की रानी का सिर्फ एक पोयम पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बट जब हमने वो मूवी देखी तो हमको समझ में आया कि झांसी की रानी ने क्या किया था। हमने एक मूवी देखी थी मंगल पांडे, जो कि हमको पहले सिर्फ मंगल पांडे एक फ्रीडम फाइटर था, हमको पता था। तो सिनेमा एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है जो आपको नॉलेज लेने का मीडियम है। हाँ, बॉलीवुड में ऐसी भी मूवीज है जो बकवास होती है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, बट स्टिल कुछ बकवास मूवीज भी अच्छी लगती है, हंसी आती है। गोलमाल जैसी मूवी जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, बट हम फिर हंसते हैं उसको देख के। तो सिनेमा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वे है, एजुकेशन का वे है। एम के गांधी गलत लिखा है मैंने, बापू लिखना चाहिए था, फादर ऑफ नेशन लिखना चाहिए था। गलत नहीं लिखा है, मतलब हम उनको कॉमनली बापू बोलते हैं, गांधी जी। उन्होंने बोला था, बाय एजुकेशन आई मीन एंड ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। जो अच्छाई है, जो खूबी है माइंड में, बॉडी में, स्पिरिचुअली जो खूबी है, उसको बाहर निकालना इज एजुकेशन। और हम लोग एजुकेशन का मतलब क्या है, उसको पढ़ता आना चाहिए। वो साक्षरता जिसको हम बोलते हैं ना, साक्षर होना और शिक्षित होना दो अलग चीजें हैं। तो हम एजुकेशन को सिर्फ साक्षरता का पैमाना, मतलब एजुकेशन मतलब वो साक्षर, उसको पढ़ते आना चाहिए, उसको लिखते आना चाहिए। या हमारे रिपोर्टरी में है तो बच्चों को केन की रिपोर्टरी कब पब्लिश हुई थी, उसमें कितने चैप्टर्स है और वो रूब्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो आना चाहिए। बट लैटिन वर्ड एडुकेयर, एडुकेयर मेरे को अच्छा लगा वर्ड। एडुकेयर मीन टू ब्रिंग आउट or draw out educum, means the act of child teaching and training. Education is the form of an individual to understand and perceive things in a deeper way. The media is the most powerful entity on the earth. They have a power to make innocent guilty. हमने बात कर ली है, एक्चुअली स्लाइड आने के पहले मैंने बात बोल दी आपको। हमको मीडिया के थ्रू, देखो हम, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अमेरिका में ट्रंप ने क्या किया वो हमको यहाँ बैठे पता चल जाता है कि क्या हुआ, कहाँ
ये मीडिया ने या इंटरनेट ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि वो हमारे हाथ में आ गई है दुनिया। हम जस्ट हमारे फोन से हर चीज को देख लेते हैं। हमारी रिलेटिव्स कहीं और बैठे हुए हैं दुनिया के किसी और कोने में, और हम उनको आजकल तो ब्लॉग बहुत चलता है ना, वो डेली क्या कर रहे हैं, क्या खाया, कब उठे, कब सोए, मतलब ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही, जबकि हम हमारे साथ होने वालों के बारे में इतना नहीं जानते। फेसबुक एक है ना, किसी एक टीचर ने बोला था कि जिस बच्चे का फेसबुक में होता है ना, उसको बुक के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो फेसबुक भी मीडिया की बहुत अच्छी चीजें भी है, बट फेसबुक एक बहुत बड़ा कॉज है डिप्रेशन का। फेक बुक, हाँ यस इट इज राइटली डिस्क्राइब, फेक बुक, लोग उसको देख देख के परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं। मीडिया एजुकेशन ये हमने बात कर ली थी। रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन एजुकेशन, रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। Print media like newspapers, journal, magazines are the basic oldest channel of communication between one and source to others. आप लोग कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली? प्रिंटेड न्यूज़पेपर, ऐप वाला नहीं, बस बाकी लोग न्यूज़ कहाँ से जानते हैं? मोबाइल ऐप, टीवी। और ये हम लोगों की जनरेशन तक तो फिर भी कोई प्रिंट मीडिया पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। हमारे बच्चे कितने लोग, सबके बच्चे पढ़ते हैं क्या न्यूज़पेपर? वेरी गुड, रेगुलर। बाकी तो मुझे नहीं लगता ना किसी के बच्चे हाँ मोबाइल पढ़ते हैं, पर न्यूज़पेपर घर में आता है। मुझे याद है बचपन में न्यूज़पेपर आता ना, हमारे टाइम बंदे होते थे। सबसे पहले पापा पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेगा, उसके बाद ये पढ़ेगा। वो न्यूज़पेपर पूरा दिन मतलब सब लोग पढ़ते थे। टाइम स्लॉट, स्पोर्ट्स न्यूज़ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो अभी सबके घरों में सबसे कॉमन चीज हो गई है। रोल ऑफ इंटरनेट, अभी हम इतने देर से इंटरनेट की बात कर रहे हैं। इंटरनेट The internet has a significant potential for providing children and youth with access to the education information and can be compared with a huge home library. Regardless of gender, race, age, geographical location, language, any disability, internet gives an equal chance to all to progress in the field of education. Online learning सबके घर में चल रहा है आजकल, और हमने भी किया ना, सब लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली अभी कोविड लॉकडाउन में। हम लोगों ने इसके पहले कभी जूम और गूगल मीट, गूगल क्लासरूम कभी यूज नहीं किया था। देखो एडेप्टेबिलिटी है ना, लर्निंग, हम थ्रू आउट लाइफ लर्नर्स थे, और अगर हम ये लर्न नहीं करते ऑनलाइन क्लास कैसे लेना है, जूम मीटिंग कैसे करना है, तो हम आउटडेटेड हो जाते, जस्ट लाइक अ कार्ड रिपर्टरी। तो ऑनलाइन लर्निंग हैज assumed a role of important media for imparting distance education. एक शायद 1960s में या मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, कोठारी कमीशन होता था। उस कोठारी कमीशन ने वोकेशनल ट्रेनिंग या जो इग्नू है, डिस्टेंस लर्निंग जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड डिस्टेंस लर्निंग, वो शुरू किया था। तो उसमें उन्होंने, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन तब दिया था कि आपको ये कंप्यूटर या फ्लॉपी या डिस्क, इन सब चीजों को, मैम गुड मॉर्निंग, अब क्या करूं मैडम, टीचर हूं ना तो नजर चली जाती है। We can get knowledge and information through charts, maps, graphs, moving images, slides, videos, clippings and audio recordings via internet. It helps to understand the entire syllabus without the help of teacher. Role of mobile devices. ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके पास मोबाइल नहीं है। मतलब हम तो ठीक है, लर्नड लोग हैं, इलिटरेट लोगों के पास भी मोबाइल है, उनको अपना नाम नहीं लिखना आता है, पर मोबाइल में नाम पढ़ने आ जाते हैं,
किसको फोन लगाना है वो नंबर उनको पता होता है, वो सब कर लेते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन्स है या मोबाइल डिवाइसेस है, इन्होंने पूरी दुनिया का चेहरा बदल दिया है हमारी लाइफ में। मतलब हम सब कुछ भूल सकते हैं, फोन नहीं भूल पाते। और किसी दिन गलती से फोन भूल जाते हैं, घर तो पूरा दिन बेचैनी होती रहती है, अरे फोन नहीं है मेरे पास, अरे फोन नहीं है मेरे पास। तो मोबाइल डिवाइस का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है। The advent of mobile devices have changed the learning methods of the students. Students store all their notes in mobile and study from it because it's easy and convenient. मेरा बेटा 12th में है और वो ऑनलाइन क्लासेस चलती है, पूरा दिन फोन पे रहता है। तो पूरा दिन फोन पे क्या करता है? मेरे को तो एक भी दिन किताब से पढ़ के नहीं देखा। वह आपका जमाना चला गया, हमारे फोन में ही सब कुछ है। देखो मेरे फोन में पीपीटीज है, मेरे फोन में टीचर्स ने जो नोट्स भेजे वो है, मैं वीडियो के थ्रू पढ़ता हूँ, मेरे पास बायजूस ऐप है जिसके थ्रू मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो आपका जमाना था कि आप दिन भर रात भर किताब लेके बैठे रहते थे और पढ़ते रहते थे। हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते हैं। टेक अ चिल पिल मॉम मैंने पहली बार सुना था ये वर्ड, टेक अ चिल पिल मॉम। चिल पिल क्या होता है? तो बोले चिल करो, चिल की पिल लो आप। देखो, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना मोबाइल यूसेज, डेटा यूसेज, इंटरनेट यूसेज में इंडिया ऑब्वियसली सेकेंड है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से कम है। ये तो बहुत पुराना टाइम्स ऑफ इंडिया का है, बहुत पुराना मतलब शायद कोविड शुरू हुआ समय का है। अभी तक तो और भी हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में देख रहे हैं 1G, 2G, 3G, 4G, अब 5G आ गया है। ब्रॉडबैंड तो पता नहीं कब का खत्म हो गया, फाइबर आ गया है। तो और सबसे मजे की बात क्या है इसमें? अर्बन इंडियन 205 मिलियन, 205 मिलियन एंड रूरल इंडियंस ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेट एज कंपेयर टू अर्बन। अच्छा, पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए रूरल पॉपुलेशन इज मोर देन अर्बन। ओके। 71 million kids aged between 5 to 11 also go online using adult devices. हाँ, घर में 2-3 बच्चे हैं तो 2 भी बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए अलग लैपटॉप थोड़ी देंगे। एक मम्मी का फोन यूज करता है, एक लैपटॉप यूज करता है। यहाँ पे एज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है और जेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। तो मेल तो बाप रे, देखो 60% मेल, 65% मेल अर्बन के और 69% मेल रूरल एरिया। फोन में लगे रहते पूरा दिन फोन। मतलब एक न्यूज मैंने पढ़ा था, उसमें बोला था कि डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण पहले तो बहुत होते थे ना कि सास बहू का झगड़ा, ये वो ये, अब फोन सबसे ऊपर आ गया है उस लिस्ट में कि पति पूरा टाइम फोन पे लगा रहता है, फोन रहता है। तो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में भी 65% मेल्स और रूरल में 69% मेल्स ज्यादा करते हैं। फिर सबसे ज्यादा जो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बच्चों का है। Smartphone is a primary mode of online learning for 79% of students in India, while 17% have access to laptops and 4% to tablets for learning purpose of attending online classes. ये सबके घर का सीन है, रोज सुबह का सीन है। बच्चे की नींद नहीं खुलती है, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग मैडम बोलती है प्लीज म्यूट योर माइक, कैमरा ऑन करो। हमने कभी सोचा था क्या ऐसा होगा? कभी किसी के दिमाग में, कभी वेगली भी किसी दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आया था कि एजुकेशन ऐसा चेंज हो जाएगा? ये 2 साल में जो हुआ है चेंज कि बिना स्कूल जाए डिग्री पास हो जाओगे आप, बिना एग्जाम दिए आप पास हो जाओगे। नहीं मैडम, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम, हाँ 12th एग्जाम, हाँ नहीं हुआ था, राइट। कभी ऐसा नहीं, जनरल प्रमोशन तो मैंने सुना है कि शायद बहुत पहले हुआ था। हाँ
7th में थे। तब हुआ होगा, बट अभी बिना एग्जाम के पास हो गए, बिना एग्जाम के डिग्री मिल गई। तो ऑनलाइन आजकल शादी ऑनलाइन हो रही है, आजकल उठाना ऑनलाइन हो रहा है। So we can rightly conclude that effect of media is vast on our life, each and every individual. With the ongoing development of information and technology in the society, media has given a particular attention to the need of education and cultural diversity and promoted media conscientiousness among individuals. Media has opened a new dimension and gave a new meaning to education. Education has become more entertaining like never before. अब आते हैं रोल ऑफ सोशल मीडिया और बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। कितने लोग सोशल मीडिया पे? सभी? कोई है जो सोशल मीडिया पे नहीं है? कोई भी नहीं है ना? इधर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन और क्या क्या होता है, स्नैपचैट, ट्विटर और बहुत है, पिंटरेस्ट। हाँ, देखो क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने बोला था ना कि ये जो bunch of people है, they are the most creative peoples of the society, a Pinterest. So मीडिया क्या करता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग, सोशल मीडिया कोलैबोरेटिव लर्निंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, स्ट्रेस बस्टर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्लोबल एक्सपोजर, एजुकेशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। हमारा फोन में भी रिंगटोन बजते हैं ना, कोविड की सिचुएशन में अमिताभ बच्चन आ जाते हैं, हम किसी को फोन लगाते हैं तो ऐसा हो गया। ये भी एक रोल ऑफ मीडिया इन आवर लाइफ है। मेकिंग फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग, फेसबुक में पता नहीं कितने पुराने फ्रेंड्स थे, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो भी मिल गए हमको फेसबुक पे, जो पॉसिबल ही नहीं था, हम कभी मिले नहीं थे। Media can be a component of activity learning strategies such as a group discussion, a case study. Media could be a film clip, a song you hear, or a radio podcast of lectures and newspapers, articles. Students can also create their own media. For example, student video projects can be powerful learning experience. हम लोगों ने, मैं आगे आऊंगी गूगल क्लासरूम जब हम बात करेंगे, हमारे कॉलेज में स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट में हम लोगों ने गूगल क्लासरूम से हम करते हैं जो सबमिशंस होते हैं ना, प्रोजेक्ट सबमिशंस, ये सब गूगल क्लासरूम पे करते हैं। पेपरलेस कर दिया हम लोगों ने कि आपको आपका जो ट्यूटोरियल है या जो सेमिनार है, तो हम पहले वो उनकी फाइल लेते थे प्रिंटेड और उसको जमा करके रखते थे, वो 10 रुपए किलो रद्दी में जाता था। तो एक बार मैं हमारी यूनिवर्सिटी में वैल्यूएशन के लिए गई, तो वैल्यूएशन सेंटर में ऊपर तक, इतने ऊपर तक रैक में पेपर्स रखे हुए थे। तो मैंने जस्ट उनसे पूछा कि इन पेपर्स का करते क्या हो? तो बोले रद्दी में जाते हैं। तो मैंने बोला रिसाइकिल करते हैं, रद्दी में जाने के बाद उसको रिसाइकिल करते हैं। तो मैंने जस्ट बैठे बैठे सोचा कि ये यहाँ नागपुर जाते हैं, उन्होंने बोला रिसाइकलिंग के लिए नागपुर की जो प्रेस है, पेपर प्रेस, वहां जाते हैं। तो इंदौर टू नागपुर इनको ले जाना, वो खर्चा, फिर उसको रिसाइकल करने का खर्चा, और एक पेपर का बंडल बनाने के लिए एक पेड़ को काटना पड़ता है। वो मुझे इतना बुरा लगा कि बाप रे, इतने सारे पेड़ काटने पड़ेंगे पेपर बनाने के लिए। तो उसके बाद से मैंने गूगल क्लासरूम पे बच्चों के असाइनमेंट्स या जो प्रोजेक्ट्स है वो सबमिशन करवाना शुरू किया। इवन लीव एप्लीकेशन, गूगल फॉर्म बनाया है जिसके थ्रू लीव एप्लीकेशन बच्चे सेंड कर सकते हैं, फिल करके, मतलब फॉर्म बनाया, उसमें वो जो भी उनका रीजन होगा वो कर सकते हैं। उनको अगर कुछ हमको मैसेज देना होता है तो थ्रू गूगल क्लासरूम या गूगल फॉर्म हम उनको मैसेज दे देते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा डिजिटल करने की कोशिश की है टू सेव अ टाइम, मनी एंड लेबर। Professors can use a Twitter or a Facebook handle for even messaging services such as WhatsApp to hold live session, offer extended support to the students, thereby enhancing the scope of learning beyond classroom.
They can organize discussions related to their subject or class assignments on social media platform. A social media therefore helps for teachers and students to remain connected off campus. Taking social media classroom everywhere in today's virtual world, which was gone totally digital, a student's physical appearance is not necessary. In a case of a ill health or a certain unavoidable circumstances, if the student is not able to attend the class, the internet is always there for your service. The student can view the recorded version of lectures or attend literature virtually in real time. Educational field has changed and transformed drastically with the entry of internet, opening up opportunities for the students and teachers alike all over the world. ये है e-learning platforms है इंडिया में. बायजूस 65% लोग यूज करते हैं, अनअकैडमी 30%, वेदांतु 29%, फिर ये बाकी है. तो सबसे जो कॉमनेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस. और हम लोगों के समय होता था इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो ई-लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग जिसको हम बोलते हैं. अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, गूगल मीट एंड यूट्यूब, इसमें भी ये भी एक बहुत पावरफुल मीडिया और टीचिंग एड है हमारे डे टू डे लाइफ में. इम्पोर्टेंस ऑफ यूट्यूब इन लर्निंग. अच्छा, आप लोगों बहुत सारे लोगों को खाना बनाने का शौक होगा. तो पहले हम लोग क्या करते थे, मैगजीन्स में या कहीं आती थी कुछ रेसिपी आती थी ना, उसकी कटिंग काट के रख लेते थे. आज आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब लेते हैं और उससे सिर्फ खाना क्यों, हर चीज यूट्यूब से सीख जाते हैं. कुछ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे सर्च करो. मैंने ये लेक्चर भी यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ा. तो आजकल हर चीज यूट्यूब पे मिल जाती है. तो यूट्यूब एक बहुत पावरफुल मीडिया है. Great revolution that has been brought about in the field of education on YouTube. It's video sharing website that provides good quality education that has been developed a lot during past few years. Even हमारे webinars होते हैं होम्योपैथी में, हम कितने सारे सब कॉलेजेस ने अपने webinars कंडक्ट किए हैं, वो भी हम YouTube पे देखते हैं. By using YouTube, the students from one country can have access to education from another country. Therefore, learning on YouTube has gained tremendous importance. Students don't have to go outside or spread a fortune to learn a required chapter. So, learners can save both their time and money. If the student is not able to understand a concept, they have an option to watch it again. Teachers can provide good quality education which is not able to reach many students in a traditional way. There are no requirement of any classroom, benches or other school materials to learn everything. Zoom, Google Meet for a teacher so that you can get started with hosting classes online, meet with your students, interact with them and get on with your teaching in no time. These are perfect tools to use for remote learning. Not only can you conduct classes the way you did in a real classroom, but you can also share the content to your screen, draw over a whiteboard to explain things better, mute participants और seamless teaching sessions and more. किसी ने बोला था कि man will become a tool of a tools, और हम वही हो रहे हैं अब. We are becoming tool of tools. So, अब बहुत सारे apps हैं जो टीचर्स के लिए हैं. टीचमेंट, दीक्षा, बहुत सारे हैं. ये जो टॉप हैं उनमें से 3 है क्लास प्लस. गूगल क्लासरूम की जो मैं बात कर रही थी, शायद मैं आपको फोन पे दिखा दूंगी. जो हमारा गूगल क्लासरूम है या जो हमने कॉलेज में जो हम एक्टिविटीज करते हैं, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. गूगल, और ये फ्री ऐप है, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें. एबिलिटी टू असाइन वर्क, होमवर्क इजीली, व्यू कमेंट्स एंड एडिट स्टूडेंट्स वर्क इन रियल टाइम, एबिलिटी टू पोस्ट अनाउंसमेंट और मेक लाइव चेंजेस टू द असाइनमेंट, ऑटोमेटिक क्विज कर सकते हैं हम. बहुत सारी चीजें हैं
जो हम गूगल क्लासरूम के थ्रू कर सकते हैं। अब लास्ट, बोर हो गए क्या? थोड़ा सा ब्रेक लेना है क्या कि कंटिन्यू करें? एक बार खत्म कर दो। लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। Computer assisted language learning is a great possibility to make a language classes livelier and more engaging. Computer can never replace a teacher. It is merely complements the teacher's role. However, in some areas of interaction, it may be better than human teacher. बोला जाता है कि nothing can replace a logic gifted human mind. मशीन कुछ भी कर ले, रोबोट्स पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर ले, बट लॉजिक गिफ्टेड ह्यूमन माइंड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो एम्पैथी है, जो ह्यूमैनिटेरियन है, जो इमोशंस है, वो कोई रोबोट या कोई टेक्नोलॉजी नहीं ला सकती है। तो कंप्यूटर्स ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो टीचर के रोल को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इट नेवर गेट बोर्ड और इरिटेटेड, जो टीचर हो जाते हैं। It never makes mistake on its own. It permits individual attention. It permits the learner to decide its own pace of learning. A well-created lesson uses multimedia to enrich and enhance learning. जो मैं बता रही थी कि जो हमारा एक कमीशन बना था डिस्टेंस लर्निंग के लिए, उन लोगों ने कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को एडवांस किया था। ये WW, अच्छा कोई बताएगा WWW क्या है? वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट पीपल्स। मतलब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है, स्टिल हम लोगों को इस चीज का नॉलेज है। ऑनलाइन क्लासेस एंड टेलीमेडिसिन, ये कुछ बुक्स है और कुछ वेबसाइट्स है या कुछ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसमें आपको हर तरह की, हर सब्जेक्ट की, हर चीज से रिलेटेड बुक्स आपको इसमें मिलेगी। PDF हर चीज का आपके पास अवेलेबल है। एक होम्यो बुक्स एक वेबसाइट है जिसपे आप होम्योपैथी से बहुत सारी बुक्स हैं जो फ्रीली आप इसमें ई बुक आप पढ़ सकते हो। एक ऐप है रेपर्टरी ई बुक जो प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। गूगल क्लासरूम जिसकी हमने बात की, और ई बुक्स भी एक वेबसाइट है जिसपे आपको हमारी होम्योपैथी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आपको मिलेगी। ये हमारे सॉफ्टवेयर से, अब हम इतनी देर से रेपर्टरी के टीचर है पर रेपर्टरी की बात ही नहीं करें तो कैसे चलेगा। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर है, मैक रेपर्टरी, रडार, सिनर्जी, ज़ूमियो, वाइटल क्वेस्ट, कंप्लीट डायनामिक, फायरफ्लाई, होमपैथ, जो कि पेड एंड फ्री वर्जन भी इनके अवेलेबल है, हम डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ये कुछ है ऐप्स। मेरे तो क्लास के बच्चों के पास में ऐप्स होना कंपलसरी होता है कि अगर आप रेपर्टरी के स्टूडेंट हो तो आपके पास ये सारे ऐप्स होने चाहिए। फ्री है, कुछ पेड भी है, पेड ज्यादा अच्छे हैं बट हम इंडियंस को फ्री सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये फ्री है। गूगल प्ले स्टोर से आप इनको कर सकते हो। तो और सबसे बड़ा गुरु गूगल गुरु, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। गुरु गूगल दोनों खड़े कहा के लागू पाए। गूगल भी अपने ये जो साइड में कॉर्नर में मैंने जो एप्स दिए हैं ये फ्री एप्स है। हैंगआउट्स है, जीमेल है, गूगल मीट है, ये बहुत सारे इनके ऐप हैं। अगर आप गूगल को अब एक्सप्लोर करोगे फॉर टीचिंग पर्पस तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। Google play an important role in education by enhancing efficacy, productivity of a teacher and a student. Its apps and services foster higher degree of collaboration, empower students and level the playing field or for. The low-priced and free apps and services can be afforded by all and used widely. Example of computer-assisted teaching in homeopathy is the repertorization with the help of software in homeopathy. We can also use multimedia while teaching
particular repertory. For instance, if you want to teach a rubric in a repertory, it is very easy to the teacher with the audio-visual aids, which will help the learner to remember them easily. This is what I do in my class. Rubrics है और फिल्म क्लिप है. नहीं डिस्कनेक्ट हो गया तो इस क्लिपिंग में तो इतने सारे रूब्रिक्स बच्चों को याद रह सकते हैं. अब ये नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? और मेरा नाम है क्या है मेरा नाम? सभी टाइम पर मैं नाम भूल जाता हूँ. अभी मेरे को किसी ने बोला कि मन इधर जाने तो अभी ये बोला. अब ये नहीं बढ़िया. हाँ स्मार्ट वो करे उधर हाउस वाइफ हो. अरे अपना हाउस हस्बैंड. हाँ उधर चाय पीना आ जाए कभी भी. हाँ ओके चलिए ना भैया हमारे साथ कॉफी पीजिए. नहीं मेरे को सब धोने का भाई. अरे पर आप जब तक बोलोगे नहीं अच्छा है तब तक मुझे कैसे पता चलेगा अच्छा है? क्यों नहीं चल रहा है? खूब चिकना सड़क पर है. हमारे गांव में सब बड़ा बड़ा गड्ढा होते हैं और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं. हमको सब छलांग लगाना सिखाते हैं. जब समय आएगा स्वराजला शिवाजी राजेला फकेगा. क्या कहते हैं ये? reduces the workload of teaching. सच में मैं जब रिपोर्टरी पढ़ाती थी और मैं जब रूब्रिक पढ़ाती थी, मतलब ये आइडिया मेरे जब दिमाग में नहीं आया था, तब तक रूब्रिक को एक सिंपल रूब्रिक एंगर को अगर बच्चों को डिफरेंशिएट करके बताना है, एंगर, रेज और फ्यूरी के बीच में अगर डिफरेंस बताना है तो समझ नहीं आता था उनको कैसे बताऊं. तो फिर मेरे को एक बार याद आया कि सनी देओल की मैं मूवी देख रही थी. तो मैंने देखा कि सनी देओल की हर मूवी घायल, घातक, क्रोध, गदर, मतलब एंगर से रिलेटेड मूवीज है, फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड मूवीज है. तो फिर मैंने एंगर, रेज, फ्यूरी, उसको फिर घायल, घातक, आक्रोश और कौन से ना वो उससे उनको फिर बताना शुरू किया. एंड इवन मेरे डिपार्टमेंट का शायद आप लोगों ने अगर देखा होगा चार्ट, उसमें भी एक मूवी का पोस्टर है और उसमें वो रूब्रिक लिखा हुआ है. तो मेरे डिपार्टमेंट में एक वॉल सिर्फ माइंड रूब्रिक की है. सर ने शायद देखी हो, जैन सर, माइंड रूब्रिक की वॉल है जिसमें फिल्म का है. हमारे प्रिंसिपल एक बार बोले तुम बच्चों को फिल्मों के बारे में क्यों बता रही हो? मैंने बोला सर वो उसी से ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, उनको उसी से याद रहता है. तो फ्यूरी रूब्रिक अगर मैंने बोला तो अगर बात की, अरे घातक
reach the large audiences, multiple dimensional learning, promote interactive learning, build confidence among students, and provide immediate feedback. हम लोगों को सबसे ज्यादा यही देखने में अच्छा लग रहा होगा, है ना? इसलिए भी मैं पूरी टीचिंग के हिस्से पेंटिंग कंपटीशन टीचर स्टूडेंट सबके लिए आइंस्टाइन ने जो बोला था उसको याद करना।
अगर एम्पैथी है और क्रिएटिविटी है तो हम किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और ये मूवी उसका बेस्ट एग्जांपल है कि हाउ टीचर कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमको पता ही नहीं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी लाइफ को अननोइंगली हम टीचर्स ने चेंज किया है। So, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, and a great teacher inspires. Effective teachings are constantly learning, and I am still learning. Thank you. मैडम पहली बार देख रहे हैं स्टार्टिंग और एंड दोनों एक साथ। एक्चुअली थीम ही वो है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप लोगों को, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आप सब टीचर्स हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस है, आपको कुछ पढ़ाना मतलब सूरज को मोमबत्ती दिखाने के समान है, और मैं मोमबत्ती नहीं हूँ, तो आप लोगों को मैं कुछ पढ़ा नहीं सकती हूँ। इट इज जस्ट अ लर्निंग एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू, एंड आई एम शेयरिंग माई लर्निंग एक्सपीरियंस। होपफुली जो हमने पहले बोला था कि आफ्टर लंच देयर इज ऑलवेज अ होप, एंड होप ऑफ डेजर्ट, शायद आप लोगों को वो डेजर्ट मिल गया, आपका लंच कंप्लीट हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? जब मोमबत्ती इतनी अच्छी है तो सूरज भी कितना चमकेंगे। अभी स्टार्टिंग जब आपका भी ट्रेलर इतना अच्छा है तो पीछे कितनी अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Anyone has any queries? Yes, sir. I don't have any query, but I always tell to my students that in repertory subject, if you know the thing, you can see the thing, and if you see the thing, you can know the thing. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हर किसी का अपना एक वे होता है ना सर, एक्सप्लेन करने का, एक बताने का। मैं जस्ट ज़्यादा शायद टाइम हो गया क्या सर हमारा? मैं मेरे एक मटीरिया मेडिका पढ़ाते थे हमारे टीचर। जैसे हमने अभी तारे ज़मीन की मूवी देखा है,
बच्चा था। और हम जितने भी होम्योपैथ्स हैं, हम बाई चॉइस होम्योपैथ बनने के लिए नहीं आए थे। हमको कहीं और जगह नहीं मिली तो हम होम्योपैथी में आ गए। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। और जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे होम्योपैथी का एच भी नहीं पता था, या मुझे होम्योपैथी नाम की कोई पैथी है, अभी तो फिर भी बहुत पॉपुलर है होम्योपैथी, पर मैं 92-93 की बात कर रही हूँ। उस समय होम्योपैथी को कोई जानता नहीं था और डेफिनेटली मैं भी नहीं जानती थी। पर क्योंकि मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला और मुझे डॉक्टर बनना था, तो किसी ने बोला अरे होम्योपैथी हमारे घर के पास एक कॉलेज है, उसमें एडमिशन ले लो, तुम डॉक्टर तो बन ही जाओगे और फिर तो एलोपैथी प्रैक्टिस ही करना है। तो मैंने अपना मन बना लिया कि हाँ मुझे तो डिग्री चाहिए ना, फिर तो मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करूंगी। फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत बेकार था, ऑर्गेनॉन मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। वाइटल फोर्स जब पढ़ाते थे तो मुझे लगता क्या बकवास है यार, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, जो मुझे लगता था कि हाँ ये कुछ है। ऑर्गेनॉन, मटीरिया मेडिका तो बकवास, और फार्मेसी तो और बकवास, क्या पेड़ पत्ते पौधों के बारे में बात करते हैं, मैं मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी। अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मटीरिया मेडिका फर्स्ट ईयर तो ऐसे निकल गया, रोने गाने में जैसे तैसे करके, रट्टा मार 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 यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया रट्टा मार मार के, आता कुछ नहीं था। पर सेकेंड ईयर में हमारे एक टीचर थे, मटीरिया मेडिका के टीचर थे डॉक्टर नायर, TNC नायर, साउथ इंडियन थे। साउथ इंडियन लोगों का एक एक्सेंट होता है और वो सबको समझ में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम लोगों को अगर उस क्लास में बैठना होता था तो बहुत बहुत फोकस होकर बैठना पड़ता था, क्योंकि सर क्या बोलते हैं समझ ही नहीं आता था। बट वो जो पढ़ाते थे बोलते बहुत कम थे, एक्सप्रेशन के थ्रू। मतलब अगर क्लास में आए हैं ऐसे आए, आप कैसे आएंगे, ऐसे करके बैठ जाएंगे, फिर कुछ छोटी सी चीज पे गुस्सा कर देंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन पूछते थे कि आप क्या सोचते हो ये मैंने क्या किया। तो हम हमारे जो भी होते थे हम वो बताते थे। फिर उसके बाद वो पूरा हमसे पूछने के बाद बोलते थे दिस इज अ CPR लेवल। तो वो जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो उन्होंने मटीरिया मेडिका पढ़ाया और जिस तरीके से पढ़ाया, उसके बाद एलोपैथी के बारे में कभी सोचा नहीं। और मैंने उनको देख देख के सोची मुझे एक दिन टीचर बनना है, और अगर 1% उनके जैसा मैं पढ़ा पाऊँ तो वो मेरी गुरु दक्षिणा होगी उनके लिए, कि मैं थोड़ा सा किसी बच्चे को इंस्पायर करूं या उनके जैसा कुछ कर पाऊं। और मेरी हमेशा कोशिश होती है, मैं जब भी कुछ नया क्रिएटिव करने का सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम उन्हीं का आता है कि सर कैसा करते थे, सर किस तरीके से पढ़ाते थे, सर इस टॉपिक को कैसे पता। लेकेसिस, CPR, नाइट्रोम्यून, ये मेडिसिन हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। और मैंने कभी किसी बुक से पढ़ी भी नहीं है, मैंने सिर्फ उतनी पढ़ी है जितनी उन्होंने पढ़ाई है, और उन्होंने पढ़ाई नहीं है, उन्होंने दिखाई है। CPR का मतलब महाराष्ट्र में साइंस यूनिवर्सिटी है, उसमें डॉक्टर JD पाटिल हैं जिनके हम बुक्स पढ़ते हैं। ये डॉक्टर JD पाटिल ने 4th ईयर में मेरे मटीरिया मेडिका का वाइवा लिया था। 1 घंटे वाइवा चला था सिर्फ CPR मेडिसिन के ऊपर, सिर्फ CPR के ऊपर। और उन सर ने उन्होंने बोला कि मैंने लाइफ में इतने हाईएस्ट मार्क मटीरिया मेडिका में किसी को नहीं दिए हैं, मैंने सिर्फ ये तुमको दिए हैं। और मैंने उस साल भी यूनिवर्सिटी टॉप किया था जस्ट बिकॉज ऑफ नायर सर। तो एक चीज मैं आज भी मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि किसी भी चीज को देखना है ना, 4 W's एंड an H, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। बस ये समझ लो, आप सब कुछ समझ लो, जिंदगी में भी ये समझ लो। तो हम वही मैं बोल रही हूँ कि हमको पता ही नहीं है कि हम कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं अननोइंगली, हम कितने लोगों की लाइफ पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं अननोइंगली। ये हमको तब पता चलता है जब कभी भी मिल जाते हैं। जो आमिर खान को वो बच्चा मिला और आमिर खान के जो आंखों में आंसू थे ना, वही आंसू हमारे आंखों में हमेशा आते हैं। हमको बच्चे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और वो हमको बोलते हैं कि आपने हमको पढ़ाया था और आज तक हम वो चीज़ नहीं भूले। इससे बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए क्या हो सकता है। तो जैसे आप बोल रहे हैं सर, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है। और फिर से मैं कहूँगी कि
replace a logic gifted human being. No teaching aid, no computer, no internet can replace a role of a teacher. कंप्यूटर्स में एम्पैथी नहीं है, इंटरनेट में एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो टीचर का रोल अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एंड मैं चाहूँगी कि सब लोग एक ताली बजाएं अपने लिए, हमारी टीचिंग फैकल्टी के लिए एक ताली बजाएं। हम अपने आप को अप्रिशिएट करें कि हम एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं इस दुनिया में। हम एक सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब्दुल कलाम मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने टीचर्स को जो सम्मान दिया है, टीचिंग को जो सम्मान दिया है, उतना सम्मान अभी तक किसी ने नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोफेशन है, दिस प्रोफेशन शुड बी अ हाईएस्ट हाईली पेड प्रोफेशन, जबकि रिवर्स है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर HMC कॉलेज, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ आऊँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। थैंक यू। We can take a tea break if you want. हो गया और कितना बाकी है वो कंटेनमेंट का जानने वाले। और तारीफ में दो शब्द यही बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी दोस्त ही नहीं, एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। और बरसों से मैं उसके साथ हूँ। मेनी ऑफ द थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम ईच अदर। और अक्सर कुछ न कुछ हमारे भोपाल से इंदौर, इंदौर से भोपाल एग्जामिनर्स की कुछ टीम होती है। सो वी शेयर आवर नॉलेज विद ईच अदर। व्हाट्सएप पे भी बने रहते हैं। सो वेरी फॉर्चुनेट कि आज मेरे को उसको सुनने को भी मौका मिला। आई एम ग्रेटफुल टू हर। थैंक यू। To Dr. Neera Vaswat, Aryan Homeopathic Medical College, Gandhinagar, Gujarat. Myself, Dr. Sheetal Kavaria from Anand Homeopathic Medical College. आपका गाना बहुत अच्छा। Myself, Dr. Disha Struki. I am from Aryan Homeopathic Medical College. अच्छा, आप लोग मेरी कॉलेज में Myself is Dr. Kankana Sharma. I am from Ananya College of Homeopathy, Gandhinagar. Myself, Dr. Monica Darasya. I am come from SS Agrawal Homeopathic Medical College, Nausani. I am Dr. Babita Dhanka from Dimri Homeopathic Medical College, Gujarat. I'm sorry, मैंने आपको ठोका। नहीं, मेरी हालत ठीक नहीं, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। एकदम से Myself, Dr. Sandeep Mandal. I am from Andhra Homeopathic Medical College, Nagpur, Maharashtra. महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। Myself, Shimon Srivastava, and I am from Lakshmi Homeopathic Medical College, Bhandu, Mehsana. Bhandu, Mehsana, Gujarat. मैं गुजरात है ना के मजा में इक्वाई आता है। इवन दो आई एम टीचिंग इन गुजराती होम्योपैथिक कॉलेज, जिस तरह कितने बच्चे जो मजा आता है। Myself, Dr. Vaishali Jain from Gonja Homeopathic Medical College, Maharashtra. Myself, Dr. Vartika Singh, CLC Homeopathic Medical College, Chhattisgarh. मैडम मुझे तो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैडम मेरे कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं और मैं मैडम के कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जामिनर जाता हूँ। क्योंकि मैं डॉक्टर सुमतिनाथ जैन, सेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एसोसिएट प्रोफेसर, रेकॉर्डेड डिपार्टमेंट। आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। प्लीज मेरे साथ भी शेयर करें। डॉक्टर नेहा पटेल, प्रोफेसर, एबी साहब होम्योपैथिक कॉलेज, मेहसाणा, गुजरात। डॉक्टर मीरा, Myself, Dr. Salim Dindia, and I am assistant professor in this department.
assistant professor in FMC department, and I am a student of this college only. Oh, great. From this college, myself Dr. CDS, Associate Professor in PM Department. So nice of you. Madam, Dr. Samir Mevan sir. Dr. Samir Mevan sir, Department of Medical and Medica, Associate Professor from this college. सर खुद क्यों नहीं बोल रहे? I am teaching last 22 years. Senior most हुआ. नहीं मतलब ये सीनियर मोस्ट आ गया. Particularly now. Good evening everyone. On behalf of Sri Samraji Homeopathic Medical College, today it's my great privilege to propose the vote of thanks from the heart of great gratitude, madam, and respect to Mrs. Anjali Nigam, madam, for accepting our invitation and sparing your invaluable time for the CME and enlightening us with your very informative talks regarding different teaching aids and computer assisted learning. Also, we had great inspiration from your information as the importance of teacher and teaching in the life, and your last statement, I am still learning. It's a great information to us. I am also very thankful to all our delegates today for giving your valuable times. No function can take shape without a hard-working leader. It was the dedication and enthusiasm of our coordinator, Dr. Mishra sir, and their team. So thank you once again. And madam, I am also very thankful that your technique of teaching the students rubric through the film, it might be a very inspirational lecture. The students will not be get bored. So thank you very much, madam. Thank you, ma'am. So we will greet ma'am with a token of love. So I'll request Vishal sir to greet ma'am with a token of love. सर प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट बैकग्राउंड CME और उसके सामने लैपटॉप This is my first certificate. डिजाइनिंग सर्टिफिकेट हमारा ये सब डॉक्टर जी सब
अभी आए थैंक यू वेरी मच अंजलि निगम मैडम। मेरा भी इंट्रोडक्शन तो दिया होगा कि इंदौर गुजराती समाज जो कॉलेज है होम्योपैथिक कॉलेज इज एमपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन के बाद गुजराती समाज का जो नाम है एक्चुअली सभी जगह ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पहले फिलअप होती है, बाद में प्राइवेट कॉलेज आती है। लेकिन गुजराती समाज एमपी के अंदर ऐसी कॉलेज है कि जो फर्स्ट एडमिशन गुजराती समाज के होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट में जाते हैं। तो उसका मीनिंग ये है कि गुजराती समाज कॉलेज में उसका टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वेलकम होगा कोई ऐसा स्टूडेंट प्रीफर करते हैं फर्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच मैडम कि आप आपका और आते रहेंगे अभी आपको। तो वंस अगेन ऑल डेलीगेट्स, ऑल टीचर्स एंड ऑल होम्योपैथिक स्टाफ कि जिसने अच्छा प्रोग्राम बनाया। और आज मैडम ने मैंने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा प्रोग्राम जल्दी फिनिश करें, तो 3 दिन हो गए तो कुछ इंटरनेट हुआ नहीं है। तो आज डॉक्टर केव सोनी एंड आप जिसको भी अच्छा सॉन्ग अच्छा लगे नहीं लगे, आए नहीं आए, तो थोड़ा इंटरनेट करने का है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने बोला कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज अ रिसोर्स पर्सन एंड मैंने कॉलेज में सर ने मुझे कॉलेज गए घुमाया, देखा, मुझे लगा हमारे कॉलेज जैसा ही है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर डिपार्टमेंट में फ्लैश चार्ट, अभी मेरे दिमाग में मेरा टॉपिक ही घूम रहा है, चार्ट, फ्लैश चार्ट, मॉडल, सब कुछ थे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके एंड सर थैंक यू सो मच कि इतने नोटिस में आप कोऑर्डिनेट करते रहे और मुझे मौका दिया यहाँ आने का। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं फिर से आऊँगी। And we will invite you online. We'll do your webinar in the Repertory department.